Hello everyone, welcome to my channel. I'm Shweta, your English teacher, and I hope you all are absolutely fine. And today we are going to learn our 12th class poem Keeping Quiet, which is written by Pablo Neruda. So आज Keeping Quiet पढ़ते हैं. Explanation, summary, poetic devices, important questions, all the things we are going to cover in this video. So let's get started. चलिए, कौन सी पोएम पढ़ने वाले हैं हम आज हम पढ़ेंगे कीपिंग क्वाइट, जो पेब्लो नेरूडा ने लिखी है, और ये हमारी 12th क्लास की पोएम है. 12th class students, I hope you all are preparing well for your English exam, as your exam is on the edge these days. So just keep preparing well. ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा जान लेते हैं पोएट के बारे में. सो पाब्लो नेरूडा, he was an author, poet, and was an active politician as well as diplomat from Chile. सो पेब्लो नेरूडा क्या थे? ऑथर थे, पोएट थे और पॉलिटिशियन भी थे. एज अ डिप्लोमेट भी उन्होंने काम किया है. कहाँ पे? चिली में. सो ही इज फेमसली नोन अंडर हिज पेन नेम एंड प्रेफर्ड इट टू कीप एज इट वॉज. ठीक है, ज्यादातर मतलब फेमस किस लिए है? अपने पेन नेम से ही जाने जाते हैं, और वो चाहते थे कि इसी नाम से उनको जाना जाए, वो उसको चेंज नहीं करना चाहते थे. ही वॉज ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन ईयर 1971. He already established himself as a writer and famous. He already established himself as a writer and found his passion for writing at the age of 13 when he started corresponding for one of the local journals. At the age of 13 he started writing. So in his later years he established a wide range of his writing styles that included surreal poems, epics that are influenced from history, and direct and assertive manifestos of political matters, literal autobiography and passionate love poems. तो उन्होंने about politics भी लिखा है, about means love poems भी उन्होंने लिखी हैं. ठीक है, some history भी उन्होंने ली है. तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने लिखा है. चलिए अब देखते हैं, poem का introduction लेते हैं अपनी. Keeping Quiet. Keeping Quiet किसने लिखी है? It is written by Pablo Neruda. ठीक है, so the poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda is a thought-provoking poem that encourages introspection and the pursuit of inner peace. Introspection and inner peace. ठीक है, जिस पे फोकस करती है ये poem from starting till end. So it discusses the need of maintaining peace and silence. The poem suggests that taking a moment of silence and pausing from our busy lives can help us connect with ourselves and the world around us. तो इस poem में पोएट ने क्या लिखा है? पोएट इंट्रोस्पेक्शन और इनर पीस की बात कर रहे हैं. और क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम अब मेंटेन करना चाहते हैं पीस को या साइलेंस को, तो अगर हम थोड़ा रुक गए अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में, अगर हम थोड़ा सा पॉज दें, तो वो अच्छा मेंटेन कर सकता है हमारे खुद के साथ, हमारे रिलेशन को, या हमारे जो सराउंड हैं उन सब के साथ हमारे बिहेवियर को, हमारे रिलेशन को वो मेंटेन करके रख सकता है, और कहीं ना कहीं रिकनेक्ट होने में, उसको बेटर बनाने में हेल्प करेगा. Fine. It stresses upon being quiet and harmless to the human beings, animals and environment. ठीक है, तो हम humans को, animals को, environment के लिए भी it is really better. So Neruda emphasizes the importance of quietness and stillness, suggesting
that these moments can lead to a deeper understanding of life and humanity. He suggests that in order to maintain peace and harmony, it is required to stop and introspect ourselves. ठीक है, अपने आप को देखना, अपने आप को चेक करना, अपने आप से रुक करके पूछना that why. This is really important. चलिए आगे चलते हैं. So theme क्या है पोएम की? The theme, the power of silence. Firstly, the power of silence and thought as a means of comprehending and engaging with the world is the theme of the poem Keeping Quiet. So in order to develop a better understanding of themselves and their surroundings, the poet emphasizes on stillness and watching nature. The speaker makes the claim that one can develop a sense of oneness with one's surroundings and other people by remaining silent. Means silence is the power, right? And observing. So the poem also considers how the modern world may be noisy and distracting, and how spending some time to be silent and still can be helpful strategy for obtaining clarity and inner calm. अपने मन की शांति के लिए, सुकून के लिए एक साइलेंस, एक पॉज बहुत जरूरी है. फाइन, चलिए यहां से शुरू होती है अब हमारी पोएम कीपिंग क्वाइट. Now we will count to 12 and we will all keep still. अब हम 12 तक काउंट करेंगे और हम सब क्या हो जाएंगे? स्टिल हो जाएंगे. कोई मूवमेंट किसी भी तरह की नहीं होगी. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. ठीक है, अर्थ पर एक बार हम क्या करते हैं? किसी भी लैंग्वेज में, पूरी अर्थ की यहाँ पे बात हो रही है, तो किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करते हैं. किसी भी लैंग्वेज, वेदर इट्स वर्बल और हम किसी से कैसे भी बात कर रहे हैं, तो वो बात करनी ही नहीं है. कोई मूवमेंट, कोई एक्टिविटी नहीं होगी. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. रुकते हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं और अपने आर्म्स को रेस्ट देते हैं, नहीं मूव करते हैं कुछ देर के लिए. अब यहाँ पे आर्म्स को मूव करना के दो मीनिंग निकलते हैं. एक है हमारा रेस्ट से, दूसरा है हमारा जो वॉर है उसको स्टॉप करने से. मतलब अभी हम किसी को हार्म नहीं करेंगे, तो अपने आर्म्स जो हैं हम नहीं मूव करेंगे. ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं. नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो क्या करेंगे? अभी हम 12 तक गिनते हैं और उसके बाद हम सब स्टिल हो जाएंगे. इस पूरी अर्थ पर कोई भी किसी तरह की मूवमेंट नहीं करेगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा. थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, सोचते हैं और अपने आर्म्स की मूवमेंट को रोक देते हैं. फाइन, नेक्स्ट पैरा देखते हैं. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर. In a sudden strangeness, fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. It would be an exotic moment. बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट, एक यूनिक मोमेंट होने वाला है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है. कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई इंजन, कोई मशीन काम नहीं कर रही है और हम सब एक सडन स्ट्रेंजनेस से एक साथ बंधे हुए हैं कि कोई भी कहीं भी है लेकिन सब एक साथ बंधे हुए हैं. क्यों? क्योंकि कोई सब क्या कर रहे हैं? एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं. फाइन,
फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, जैसा कि हमने बात किया था पोएम के इंट्रोडक्शन में कि एनिमल्स को भी हार्म नहीं होगा उससे। अपने बेनिफिट्स के लिए हम नेचर के साथ, एनिमल्स के साथ, हर किसी के साथ खेलते चले जा रहे हैं, हर किसी के साथ खिलवाड़ होती चली जा रही है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट, जब सारी एक्टिविटीज ही बंद हो जाएंगी तो शायद जो फिशरमैन है वो वेल्स को भी हार्म नहीं करेंगे, थोड़ी देर के लिए ही सही। एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट would look at his hurt hand, और वो जो नमक इकट्ठा करते हैं वो अपने हाथों को देखेंगे। अब यहाँ पर भी दो मीनिंग हमारे निकलते हैं। एक तो नमक इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं उनके जब आप हाथ देखोगे तो वो खराब हो जाते हैं, है ना। नमक एक तरह से आप देखते हो नमक क्या करता है, गला देता है चीजों को। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो भागते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, अपने आप को भी हार्म किए जा रहे हैं, तो एक बार रुक के देखते हैं, सोचते हैं अपने बारे में, एक पॉज लेते हैं और फिर रीस्टार्ट करते हैं। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. Fine. Those who prepare green wars, वो जो ग्रीन वॉर को प्रिपेयर कर रहे हैं, किसकी तरफ चल रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की तरफ चल रहे हैं। वॉर्स विद गैस, जो ये जो हम न्यूक्लियर एंड ऑल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। वॉर्स विद फायर, एक दूसरे को हार्म करना विद द यूज ऑफ फायर। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, हालांकि युद्ध होगा, लड़ाई होगी तो कोई ना कोई तो जीतेगा ही, पर वो विक्ट्री किस काम की जब सर्वाइवर ही नहीं बचेंगे। अपने ही लोगों को आपस में लड़वा के जब अपने लोग ही नहीं बचेंगे तो वो विक्ट्री का आई थिंक कोई मायने नहीं रह जाते हैं। सो would put on clean clothes and walk about with their brothers in shade of doing nothing, in the shade doing nothing. तो वो क्या करेंगे, क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे, क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, यानी कि उनके क्लोथ्स पर किसी तरह के कोई स्टेन्स नहीं होंगे, ब्लड स्पॉट्स नहीं होंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो उनके कपड़े देखो, यहाँ पर दो तरह से हम इसको लेंगे। कैसे, एक तो जो वॉर कर रहे हैं, वहां पे लड़ रहे हैं, तो उनके जो क्लॉथ्स हैं उन पे स्टेन, ब्लड्स के या किसी भी चीज के जो स्टेन्स आ जाते हैं वो नहीं होंगे। सेकेंडली, जब हम एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे, मीन्स आवर सोल विल बी क्लियर। फाइन, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। ब्रदर्स कौन, वही जो आपस में लड़ रहे हैं। जब वो रुक जाएंगे और थोड़ा सोचेंगे कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर वो आपस में एज अ ब्रदर बैठेंगे इन द शेड डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ बैठेंगे और सोचेंगे। What I want should not be confused. जो मैं चाहता हूं, तो अब लोग कहते हैं कि जो मैं चाहता हूं उसको लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है विद टोटल इनएक्टिविटी। मतलब ये नहीं कि टोटल इनएक्टिविटी है तो क्या हो जाएगा, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ तो जैसी है वो तो वैसी ही रहेगी। ऐसा नहीं कि हम हमेशा के लिए टोटल इनएक्टिव हो जाएंगे। द थिंग इज, हमें थोड़ी देर रुकना है, एक पॉज लेना है, एक इंटेंशन बनाना है कि हम क्यों किए जा रहे हैं। हम सुबह से उठते हैं, भागते दौड़ते रहते, सोने की फुर्सत नहीं, बैठने की फुर्सत नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देते हैं, बहुत सारे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम मटीरियलिस्टिक इतना ज्यादा हो चुके हैं कि बस लाइफ में भागते चले जा रहे हैं। बट वाई, फॉर व्हाट, दिस इज द मेन थिंग इन दिस पोएम, कि हमें सोचना है, वो वाई का आंसर हमें पता चले। तो टोटल इनएक्टिव नहीं हो जाना है हमें, लाइफ तो जैसी है ऐसी ही रहेगी। लाइफ तो ऑब्वियसली एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो वो चलेगा। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इसको डेथ के साथ रिलेट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ
We were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते और अगर हम बिल्कुल लाइफ में ऐसे भाग रहे नहीं होते, अगर हम थोड़ा सा रुके, थोड़ा सा साइलेंस हो जाएं, तो शायद ये जो सैडनेस है उसको हम इंटरप्ट कर पाएं. सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, कहीं ना कहीं एक सैडनेस है, किसी को पैसों को लेकर के, फैमिली को लेकर के, हमारे जो एम्बिशंस हैं, हमारी जो डिजायर्स हैं, दोज नेवर एंडिंग डिजायर्स. ठीक है, आज मेरे पास फॉर सपोज मेरे पास बाइक नहीं है, मैंने बाइक ले ली, नहीं उसके पास गाड़ी है, मुझे गाड़ी चाहिए, फिर गाड़ी ले ली, फिर भी हैप्पी नहीं है. क्यों? क्योंकि उसका नया मॉडल आ गया है. फिर पड़ोस वाले के पास दूसरी है, अरे उसके पास दूसरी है, हमारे उस रिलेटिव्स. तो ये जो नेवर एंडिंग डिजायर्स हैं हमारी, शायद अगर हम एक बार रुक के उनके बारे में सोच लें तो ये जो सैडनेस हमारी लाइफ में बनी हुई है, शायद ये इंटरप्ट हो पाए. ऑफ नेवर एंडिंग never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. ठीक है, कि जो हम भागते चले जा रहे हैं अपने आप को बिना ही समझे, जो हम भागते चले जा रहे हैं, और किस चीज से? एक डेथ के डर से कि कल को कुछ हो गया तो उससे पहले सब कुछ कर लो, ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. 1 मिनट में कुछ होता है, सब खत्म, उसके बाद सब हो जाता है. फैमिली भी कितने दिन याद करती है. ठीक है, तो यही यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में, उससे रुके, एक बार सोचें, एक बार रीजन ढूंढें और फिर दोबारा से रीस्टार्ट करें. तो वो ये नहीं कहते कि टोटल इनएक्टिव हो जाएं या एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एंडेड. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. सो परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद अर्थ हमें सिखा सके. एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ डेड हो चुका है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नेक्स्ट टाइम बाद में उसी में एक जीवन नजर आता है. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू विल कीप क्वाइट एंड आई विल गो. अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप सब चुप हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा. ठीक है, अब ये अर्थ का कैसे लिया है यहाँ पे कि जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी भी उसमें जान होती है. किसी नेचर से रिलेटेड आप किसी चीज को लो, पेड़ है, काट दिया, खत्म हो गया, लेकिन अगर वो नीचे इतना सा भी रह जाता है ना, मतलब उसका अगर पार्ट रह जाता है, तो उसमें फिर से पत्ते निकल आएंगे. फ्रूट है, बीज गिर गए, फ्रूट खा लिया, खत्म हो गया, उस बीज में से नया जीवन निकल आता है. तो शायद ये अर्थ हमें सिखा सके कि जब सब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी भी वहां से भी एक शुरुआत की जा सकती है, वहां से भी जीवन को जिया जा सकता है. तो अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप सभी शांत हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा. ठीक है, अब 12 तक ही काउंटिंग क्यों ली है? 12 तक ये भी हो सकता है कि देखो, अब जो हमारे जो क्लॉक है उसमें भी 12 आवर्स ही होते हैं, है ना. एक हम ज़ोडिएक जो साइन होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड भी हम ले सकते हैं, वो भी 12 होते हैं. ठीक है, तो ये भी हो सकता है बेटा इसमें. चलिए आगे देखते हैं क्या है. समरी एक्सप्लेनेशन, आई होप सभी को समझ आई हो. फिर भी बेटा देखो, अगर कहीं भी कुछ भी आपको डाउट रह जाता है ना, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई फॉर दैट. फाइन. चलिए, in the poem Keeping Quiet, the poet asked humanity to count numbers from 1 to 12, being the number of hours shown in clock, or the number of zodiac signs. He requests everyone not to speak because language creates barriers between people. कई बार भाषा भी एक बैरियर बना देती है लोगों के बीच में. तो क्या है कि साइलेंट रहें, चुप रहें बिल्कुल. द मोमेंट when everyone stops moving, their body will be very special and different as we have never experienced such a moment before. वो मोमेंट जब सब शांत होंगे, कोई कुछ नहीं कर रहा होगा, will be very special, बहुत स्पेशल होने वाला है. क्यों? क्योंकि ऐसा आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है ना पहले किसी ने. The poet says that in this period of inactivity, the fisherman would not harm the whales and salt gatherers will not hurt their hands. Those who are busy destroying the nature will adopt a new approach towards life. क्या करेंगे? whales को
हार्म करना बंद कर देंगे, नमक इकट्ठा करने वाले रुक के अपने हाथों को देखेंगे, और जो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं शायद एक नई अप्रोच लेकर आए टुवर्ड्स लाइफ। द मेन who are preparing for wars and victory based on deaths of innocent people will join their enemy, stand in unity with them। जो एक दूसरे को बिना वजह मारे जा रहे हैं, उस विक्ट्री का जब कोई फायदा ही नहीं है तो क्यों, किस लिए, शायद वो अपने एनिमी को ज्वाइन करें और एक यूनिटी में साथ में आए। No one will harm himself or any other person, खुद को भी नहीं और किसी और को भी हार्म नहीं करे। Everyone will unite and ponder upon his acts and realize the results of his deed। एक बार रुके, सोचे, उन पे एनालिसिस करें कि क्या होने वाला है, जो हम करेंगे उनका रिजल्ट क्या होने वाला है। The poet clarifies his idea and says further that he does not want the people should idle। ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल खाली हो जाएंगे। देखो लाइफ तो चलती रहेगी, बट हाँ ये कुछ देर रुकने के लिए एक सोचने का जो है आइडिया है पोइट का। ही इज प्रमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। किस चीज को प्रमोट किया जा रहा है? यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, आगे भी रहती है हमारी अभी। So the poet says that everyone is working continuously to achieve one's goal. People are threatened by death and fear forces them to work endlessly. डेथ से डरे हुए लोग तो एंडलेसली काम किए जा रहे हैं कि कल को कुछ हो गया तो इसका क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, बच्चों अरे खुद के बारे में तो सोच लो। ठीक है, तो पीपल, वो पॉइंट हमारे ये कह रहे हैं कि जो एंडलेसली हम जो चलते जा रहे हैं, एक बार रुके सोचे दैट दे कैन अचीव एवरीथिंग क्विकली। In this mad rush, they do not realize the repercussions of their act। अपने बारे में तो सोचते नहीं, अपने कर्मों के बारे में नहीं सोचते हैं। So he wants us to pause and come out of the mad rush। He wants us to be happy and overcome the fear of death, to relax for a while। When the people remain quiet for a while, they will realize the purpose of their lives। Just like all the creations of nature undergo a rebirth with the change of season, similarly keeping quiet will be a rebirth for human soul। It will give a new meaning to our life। Again the poet says, he will count till 12 and ask everyone to remain quiet while he leaves। तो क्या होगा कि जब क्या होता है, एक बार सब कुछ खत्म होके जो रीबर्थ होता है, इसी तरह एक बार सब रुक के पॉज लेके जब दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे तो शायद समझ पाए अपने आप को, आने वाले टाइम को, अपने जो भी हम डीड्स, जो भी टास्क हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उन चीज़ों के रिजल्ट को समझ पाए, सेल्फ एनालिसिस हो सके। ठीक है, तो फिर कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा, आप सब चुप हो जाइएगा और मैं चला जाऊंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम देखते हैं अपने पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस में मैंने सिर्फ जहां पर जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है बेटा वही लिखा है, डेफिनेशन आप लोगों को पता है। स्टिल यू वांट द डेफिनेशन ऑफ ईच एंड एवरी पोएटिक डिवाइस, जस्ट लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दिस। सो चलिए शुरू करते हैं। एलिट्रेशन है सबसे पहला हमारा। देखो बेटा एलिट्रेशन क्या होता है, जब सेम लेटर से, कंजंक्शन से स्पेशली, कॉन्सोनेंट से स्पेशली, जब एक ही लेटर से वर्ड जो है बार बार आते हैं विद इन वन लाइन, वहां पर एलिट्रेशन होता है। सडन स्ट्रेंजनेस, एस हर्ट हैंड्स, एच क्लीन क्लोथ्स, सी वी वुड, W all be together noble natures, wars with gas, wars with fire। फाइन, तो जहां पर दो या दो से ज्यादा वर्ड सेम लेटर के, जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, जब वो रिपीट हो रहे हैं तो वहां पर एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पे जितने थे
they all are in front of you. Now enjambment में आपको पहले भी बता चुकी हूँ enjambment क्या होता है बेटा, जब एक लाइन से दूसरी लाइन कंटिन्यू करती है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, कोई कोमा नहीं है, कॉलन, सेमीकॉलन, हाइफन, फुल स्टॉप कुछ भी नहीं है, एक लाइन से दूसरी लाइन में हम आ रहे हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो वहां पर एंजैम्बमेंट होगा। ठीक है बेटा। सो नाउ वी विल काउंट से लेकर के कीप स्टिल तक हमारी एक लाइन कंटिन्यू चल रही है। हालांकि पोएट ने उनको अलग अलग पार्ट्स में लिखा है, बट लाइन जो फुल स्टॉप है वो कीप स्टिल पे आके आ रहा है, मीन्स टू लाइन्स आर कमिंग टुगेदर विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो वहां पर एंजैम्बमेंट है। सेम हियर विद परहैप्स द अर्थ से लेकर के टू बी अलाइव तक। फाइन। इमेजरी, जहां पर इमेजिनेशन है वहीं पर इमेजरी है। सो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, यहाँ पर बेटा ये सी है, यहाँ पर गैप नहीं है, ठीक है, इट इज सी। वुड नॉट हार्म वेल्स, तो ये एक इमेजिन कर रहा है कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा होता है तो वो वेल्स को हार्म नहीं करेंगे, ये एक इमेजिनेशन है। द मैन गैदरिंग सोल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो अपने हाथों को देखेंगे। फाइन। पर्सोनिफिकेशन कहाँ है, जहां पर ह्यूमन एट्रीब्यूट गिवन होता है नॉन ह्यूमन थिंग को, वहीं पर पर्सोनिफिकेशन होता है। यहाँ पर अर्थ को पर्सोनिफाई किया है, अर्थ कैन टीच अस, मीन्स अर्थ इज बिहेविंग लाइक अ टीचर, तो अर्थ हमें टीच करेगी, तो क्या है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। फिर रिपीटेशन तो बहुत सिंपल है, सिंपल कोई भी वर्ड अगर बार बार आ रहा है तो वहां पर रिपीटेशन है। विदाउट रश, विदाउट इंजन, विदाउट आ गया देखो 2 बार। वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, वॉर रिपीट हो गया, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ये 2 बार हो गया। ठीक है, तो जहां पर एक ही वर्ड बार बार आ रहा है वहां पर रिपीटेशन है। फिर आता है आपका ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या है बेटा, जहां पर 2 अपोजिट चीजें एक साथ आ रही हैं एक सेंटेंस में, वो ऑक्सीमोरॉन है। एक सेंटेंस में नहीं, मतलब बिल्कुल साथ में बैठी है, नेक्स्ट टू ईच अदर। जब साथ में बैठी हैं 2 ऑपोजिट चीजें, एक दूसरे के 2 ऑपोजिट वर्ड्स आर सिटिंग टुगेदर, देन देयर इज ऑक्सीमोरॉन। एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, देखो एक जगह कह रहे हैं एक्सोटिक मोमेंट और एक तरफ कह रहे हैं विदाउट रश। एक्सोटिक यानी कि जो बेचैनी भरा मोमेंट है, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं विदाउट रश, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन हो गया। ओके, सो कंबाइंस एक्साइटमेंट विद कामनेस। फाइन, तो ये हमारे पोएटिक डिवाइस है। पोएटिक डिवाइस में किसी को कोई भी डाउट हो बता देना बेटा। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। What does the poet mean by inactivity? जैसा कि हमने पढ़ा कि टोटल इनएक्टिविटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। चलिए, this poem emphasizes the importance of remaining calm and quiet. The poet believes that all of our problems stem from the frantic pace of our lives. However, his point of view should not be confused with complete inactivity. His idea of keeping quiet is silence, not inactivity. उनका आइडिया क्या है, जिस साइलेंस होना है, थोड़ा सा रुकना है। टोटल इनएक्टिविटी नहीं, ऐसा नहीं कि फिर उसके बाद कुछ करना ही नहीं है। ओके, लिथार्जी और आइडलनेस, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं बोला है। He advises everyone to take a break from the world's frenzy. He believes that observing stillness every now and then helps people to spring back into action. Fine. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the ultimate expectation of the poet from all human beings? सभी से अल्टीमेट एक्सपेक्टेशन क्या है? Taking a break from our monotonous routine by counting up to 12 and keeping still, according to the poet, will help us to better understand ourselves and those around us. थोड़ा सा ब्रेक लेना जरूरी है अपने आप को बेटर समझने के लिए और हमारे आसपास जो लोग हैं उनको बेटर समझने के लिए, उनसे प्रॉपर कनेक्ट करने के लिए, और मैं कहूँ रिकनेक्शन के लिए। The silence will help us understand the importance of peace and tranquility in this age of futile activities.
As a result, they will aid us in introspection and self-analysis. Fine. One more question is there, which is your long question. चलिए इसको देखते हैं. इसको मैं पहुंचा देती हूँ भी यहाँ पे. ठीक है. The world has become a global village and people across boundaries, nationalities and communities are now connected to one another. ग्लोबल विलेज बन गया है पूरा वर्ल्ड. अलग अलग बाउंड्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में रहते हुए, अलग अलग जगह पे रहते हुए लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. With the advancement of technology and the advent of social media, do you think that the task of keeping quiet, as envisaged by Neruda, has become easier or more complicated? Justify your stance. एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से सब कनेक्टेड है और स्पेशली थ्रू दैट सोशल मीडिया. तो ऐसे में जो आइडिया है हमारा पेब्लो का, जो आइडिया है, क्या वो और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्या बिल्कुल आसान हो गया आज के टाइम में? तो उसी को हमें बताना है. सो वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्ट भी प्रॉपर है हमारे पास, कम्युनिकेशन भी अच्छा है. सो पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लिंक्ड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. ट्रांसपोर्टेशन भी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन है, और कम्युनिकेशन भी है. तो सब एक दूसरे से लिंक्ड है कहीं ना कहीं. पीपल यूज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू स्टे मेंटली कनेक्टेड टू ईच अदर इवन व्हेन दे आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड. फिजिकली नहीं मिल पाते हैं तो मेंटली दे आर कनेक्टेड थ्रू दिस कम्युनिकेशंस. They use various modes of transport such as buses, cars, airplanes and ships to travel from one location to another for business or to visit loved ones. So there are lot many things for traveling, right? In today's world, social media platforms such as Twitter, Facebook, WhatsApp, Snapchat and others have grown into massive platforms that connect people ऑल ओवर द वर्ल्ड. या इनके थ्रू तो आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो. अब जो हमारा जो IG है, आइदर यूट्यूब है हमारे पास, ये तो ऐसे प्लेटफॉर्म है कि जिनको हम जानते भी नहीं हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं हम कनेक्टेड हैं. सो ड्यू टू दिस एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, द टास्क ऑफ कीपिंग क्वाइट बोथ मे एंड मे नॉट बी अचीवेबल डिपेंडिंग ऑन द वे पीपल परसीव इट. किस पे डिपेंड करता है, लोग कैसे उसको लेते हैं, परसेप्शन क्या है इसके लिए लोगों का, उस पर डिपेंड करता है दैट इट विल बिकम ईजियर और harder. People understanding the need of introspection and reflecting on their actions, thoughts, etc. can through the use of social media support and promote the idea of keeping quiet. However, on the contrary, और इसी के opposite क्या है, social media, technology and the world itself for some people can prevent them from keeping quiet. ये इस पे इतना ज़्यादा एडिक्शन है, इतना लोग इस पे कनेक्ट हो चुके हैं कि शायद ये हो ही ना पाए, ये मोमेंट कभी आ ना पाए. So this making it a fanciful idea or more complicated to achieve with nature. Therefore, people's perception towards the idea and understanding of introspection and keeping quiet would be an important factor in determining if the task would be complicated or easy to achieve. तो ये लोगों के perception पे डिपेंड करता है कि ये और ज़्यादा मुश्किल होने वाला टास्क है या फिर आसान. फाइन, चलिए, थैंक यू सो मच. दिस इज इट फॉर टुडे. तो ये जो पोएम थी हमारी कीपिंग क्वाइट, बेटा इम्पोर्टेंट पोएम है, ये सभी को पता है. ठीक है, आई होप अभी किसी को कोई डाउट नहीं रहे हो. फिर भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं. एंड पढ़ते रहिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आइए, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाइए, अपनी लाइफ को सक्सेस पाथ पे लेके चलिए. ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.
keep sharing with your friends and like if you liked the video. Also subscribe the channel. Thank you.